ومولانا محمد وبارك وسلم کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد و صلاۃ میرے بزرگوں اور دوستوں، برادران اسلام، یاران طریقت، اللہ کریم نے آج کر 1 سال بعد تقریباً اس منیر شہر میں ہمیں دوبارہ ملنے کا موقع عطا کیا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں میاں سلیم صاحب، چودھری افضل صاحب، بابا صوفی حسنین صاحب، ڈاکٹر محبوب صاحب اور ان کی کابینہ، جتنے بھی جنہوں نے پیار کیا، تعاون کیا اور یہ خوبصورت بزم سجائی۔ اور جو دوست پہلے بھی بزم سجاتے ہیں، گلشن حدیث سے نکلتی ہوئے شاہ لطیف ٹاؤن، شیر باؤ، گاندھی، نازم آباد، دیگر اکثر آباد تقریباً پروگراموں میں شریک رہے، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چند باتیں گوشتگار کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد سلام پیش کریں گے۔ آج اس محفل میں پہلے بھی خوشی زیادہ اس لیے ہے کہ غلامان موری شریف اور غلامان وادی عزیز یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ویسے سارے عزت کے لائق ہیں، جو بھی ہے، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن کیونکہ یہ میرے شیخ کریم کا شیخ کا آستان ہے، اس لیے اگر کوئی نیچے ہے تو میں سلوک پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی مذہبی سیاسی شخصیات آئیں، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ۔ اللہ کتنا کریم ہے اور وہ کتنا کرم کرتا ہے۔ اور آپ قرآن مجید کی یہ سورۃ النساء کے چھوٹے سے حصے کے اوپر غور کریں، اللہ کریم نے اس آیت میں جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو کفیل ہیں، کفالت کرتے ہیں، اگر ان کے پاس یتیموں کا مال آئے نا، پھر اسے سب سے نہ کریں۔ اگر آپ رب کو منانا چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو، پھر جہاں آپ نماز ادا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عمرے ادا کرتے رہتے ہیں، بڑی بات۔ اللہ کریم جو سجدے کرتے ہیں اللہ ان کے قبول کرے، جو غفلت اور کوتاہی کا حساب کرتے ہیں میرا رب انہیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں، ان سجدوں کے ساتھ ساتھ، اس ذکر کے ساتھ ساتھ، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم ایک اور بھی خاص حکم دیتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو پاور والے نہیں ہیں، جو طاقت والے نہیں ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا۔ کتنا پیارا دین ہے، خدمت یتیموں کی کرتے ہو، خوش رب کریم ہوتا ہے۔ خدمت یتیموں کی کرتے ہو، خدمت مسکینوں کی کرتے ہو، خدمت بیواؤں کی کرتے ہو، خدمت لاچار لوگوں کی کرتے ہو، خدمت بے روزگاروں کی کرتے ہو، خوش تمہارا رب ہوتا ہے۔ کتنا پیارا دین، شان والا۔ اور اس آیت مبارکہ میں تو بالخصوص اللہ کریم نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں۔ اکثر ہمارے دیہاتوں میں اور پنجاب میں یہ بات کی جاتی ہے، انشاءاللہ کسی نہ کوئی ہوگے، مالک کوئی بڑا ہو، پھر اسے فکر نہیں ہوتی کہ میرا کوئی ہے۔ جب باپ صاحب پہ ہوتا ہے پھر عام لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں یار اگر ہاتھ اٹھائیں گے نا اس کا بھی باپ ہے، ہو سکتا ہے وہ چھوٹا ضرور ہوگا، وہ ہم سے بدلہ لے سکتا ہے۔ لیکن آئیں کتنا شان والا دین۔ آج ملیر سٹی میں آنے والے میرے حضور کے غلاموں، توجہ سے بات سنیں، تم معمولی نہیں ہو، تم تو شان والے ہو۔ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، کبھی سوچا کہ تم ہو کون؟ تمہارا مقام کیا ہے؟ آج اگر ہم بستی کی طرف آئے، حقیقت میں یہ ہماری نالائقیاں ہیں، ہماری یہ کوتاہیاں ہیں، ہم نے غفلت کی چادر تان لی۔ لیکن وہ لوگ، امیر ہوں، اعلیٰ ہوں، جو ادنوں کا خیال رکھتے، رب ان سے راضی ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو حکم کیا ہے فرمایا؟ فرمایا جیسے بھی ہے نا، فآتوا اليتامى أموالهم، یتیموں کا مال ان کے حوالے کرنا۔ اس کا پس منظر عرض کرتا ہوں، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا بھائی فوت ہو گیا، اس کا بھائی فوت ہو گیا، اس کا چھوٹا بیٹا تھا،
जो परवान चढ़ा ना, तो एक दिन वो अपने चचा के पास आया और आकर कहने लगा कि जो हमारा माल तेरे पास है ना, ये हमारे हवाले कर दे। वो चचा बड़ा था, उसने कहा तेरा माल किधर से आया? उसने कहा मेरे बाप का हिस्सा था, ये तो मेरा हक है दे। उसने कहा तेरे बाप का कोई माल नहीं था, ये तो मैंने मेहनत से बनाया है। फिर हुआ कि हाँ है अल्लाह करीम का करम देखे, चचा ने जब उस भतीजे को, उस यतीम को धुतकार दिया ना, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद नाज़िल कर। बातें तो आप बड़ी सुनते हैं, लेकिन कभी गौर करें, वो चचा जिसने अपने भतीजे को धुतकारा, घर से निकाला कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, ये तेरी मेहनत की कमाई है, ये मैंने थारी तिजारत की है, इसलिए ये जायदाद है, तेरे बाप का हिस्सा नहीं है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। और जब ये आयत नाज़िल हुई ना, फिर वो भी मामूली नहीं थे, वो भी नबी के गुलाम। जब ये आयत कि वआतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यब, मेरे मालिक ने हुक्म इरशाद फरमाया, तो यतीमों का माल उनके हवाले करो। तो जब उस शख्स ने ये आयत सुनी ना कि रब ने कुरान नाज़िल फरमाया, उठा सीधा भतीजे के घर आया और भतीजे को आकर कहता है यार अपना हक दे। कितना मजा आया, कुरान नाज़िल होने की देर थी और उसने ऐलान किया हम तो रब को मानने वाले हैं, हम रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। कुरान हुक्म देता है वआतुल यतामा अमवालहुम, के यतीमों का माल उनके हवाले करना। यतीमों का माल, अच्छा जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, जो खाते हैं, आप वो अच्छे लोग हैं, अक्सर सूफिया हैं, बस दुनियादार भी होते हैं। मैंने ऐसे भी दुनियादार देखे जो दिल के सूफी होते हैं, ज़ाहिरी तौर पे वो सूफी नजर नहीं आते। हाँ, हम ये बड़ी फैज़ाबाद प्रोग्राम है इंशाल्लाह, वापसी की फ्लाइट लाहौर की है, आप भी मेरे सफर की दुआ करेंगे, जहाँ हम आपकी भी दुआ करते हैं, आप भी वो जैसे निकलने की दुआ क्या करें। अल्लाह के सही मानों में जो दीन हमें नसीब किया है ना, और मेरे शेख करीम का जो फैज़ान है, सही तरीके से खुलूस के साथ हम इसकी अदायगी करते रहे, रब भी राजी हो, रब का मामूल भी राजी। ये जिंदगी तो आरज़ी है, ये बहारें, ये दोस्त, ये सबको जिक्र छोड़कर जाना है। दोस्ती से मना नहीं है, प्यार से मना नहीं है, लेकिन नाश तो करो ना, मामूली नहीं हो, मेरे नबी के गुलाम हो, तुम्हारा मकाम बड़ा है, मर्तबा बड़ा है। अच्छा वो जिस शख्स की मैं बात बता रहा हूँ, यकीन जाने उसकी दाढ़ी नहीं थी, मूंछें नहीं थी, क्लीन शेव, और वो है PIA में ऑफिसर, अल्लाह से और इज्जत दे। मुझे जब वहाँ मुलाकात हुई, बड़ा प्यार किया, मैं फिर के बाद मुझे मिलता है, मुझे उसने बात की है पता नाम से भी और वैसे भी। उसने कहा जो गरीब बेटियों की जब शादी होती है ना, मैं एक पैर जरूर देता हूँ, आपके इलाके में भी शादी हो ना तो मुझे जरूर बताना, उस बेटी का बेड मैं दूँ, लेकिन शर्त ये है मेरा नाम नहीं लेना। ये शर्त लगाई। मैंने कहा यार ज़ाहिरी तौर पे तो दुनियादार देखते हो, दिल के सूफी इंसान हो, मजा तो फिर है ना, मतलब सूफी भी हो, ताज भी सजाया हुआ हो, फिर नबी का गुलाम भी होना, मजा था है सरकार। मैं शर्म में कह दे वो देखो हमारा गुलाम। फिर यकीन आप सूफी है, ज़ाहिरी भी सूफी हो और फिर दिल के भी सूफी हो, फिर आपका ताल्लुक किन हस्तियों के साथ है। और ये अक्सर अलायान कहता हूँ, हमने बेनमाज को भी नहीं माना, हमने भंगियों को पीर नहीं माना, हमने चस्सियों को पीर नहीं माना, हमने शराबियों को पीर नहीं माना, हमने उसे पीर माना है जो गुलाम मुस्तफा है, जिसकी सीरत मोहम्मदी, जिसका किरदार बेनमाजियों के लिए नहीं आए। अगर देख रहे तो बात यजीद शरीफ की सरजमीन पे आए, मौली शरीफ की सरजमीन आए, ख्वाजा मासूम को देखे, ख्वाजा नवाबुद्दीन को देखे, ख्वाजा मोहम्मद अली को देखे, ख्वाजा महबूब इलाही को देखे, पीर करम शाह को देखे, को देखे, मेरे शाह यहूब अली शाह। खुशी इसलिए है, आप तो कराची जैसे शहर में रहते हैं, कभी सफर होता है सुबह सब मैं कहता हूँ आप लोग कराची के बड़े मुजाहिद हो। मैंने कहा आपके पंजाब वाले हैं ना, हमारे लोग तो मोटरसाइकिल भी ज्यादा चलाएं, ये आप लोगों को काम है जो मोटरसाइकिल निकालते हैं, गाड़ियों वाले गाड़ियां निकालते हैं। इतने रश में आप लोगों का सफर करना, दूर तक आना जाना, और ये भी अल्लाह का करम है कि आपको चुन लिया। और जितनी देर से बैठे क्या काम है,
जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा। दुनिया का कोई काम नहीं, किसी चौधरी का जिक्र नहीं, किसी खान का जिक्र नहीं, किसी ललित का। हाँ, जो चौधरी को चौधरी बना देता है उसका जिक्र, जो खान को खान बना देता है उसका जिक्र करते हैं, जो मलिक को मलिक बना देता है, जो कुर्सियां अता करता है उसका जिक्र करते हैं। और ये दिन था, आप एक हफ्ता पूरा आते रहे, यकीनन ये अल्लाह का एहसान था कि आपको अपनी याद के लिए चुन लिया। हम तो चले जाएंगे, आप नमाजें भी पढ़ते रहे, जिक्र भी करते रहे, जाने के बाद भी ये जमीनें अल्लाह की बारगाह में झुकती रहे। हम सजदे इसलिए नहीं करते कि लोग हमें नेक कहें, सूफी कहें, बादशाह कहें, नहीं, सजदे इसलिए कहते हैं मालिक राजी हो, मालिक का हुक्म है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो आइए जो बात कर रहा था, वह आतुल यतामा अमवालहुम, जिस मनसब पे भी फैज होना, यतीमों का माल न खाना, यतीमों का माल उनके हवाले करना। और जो लोग यतीमों का माल देते हैं, पता है उनसे इनाम क्या मिलता है? जो लोग यतीमों का ख्याल रखते हैं, जरूरी नहीं है वो अपने हों, वो भतीजे हों, वो भांजे हों, कोई रिश्ता ना हो, ऐसा कुछ नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। और आपकी सरजमीन का ये वतीरा था, आज भी बातें चलती है ना, हम कहते हैं उसका कफील कैसा है, दोस्त आपको मिलते होंगे, कहते हैं कफील अच्छा है, हम बड़े खुश हैं। जिसका कफील साहब तो वो बड़े परेशान होता है, कहते छुट्टी नहीं देता, टैक्स ज्यादा देता है। वो चीज तो हमने सिखाई है ना कि टैक्स इनसे देना कैसे है। बराबर, ये मेरा मौजूद बहस नहीं है, तो जो चाहता हूँ, एक दफा अबू जहल जाग रहे हैं, अबू जहल वो भी एक शख्स का कफील था। ये अरब के लोग ये कफालत करते थे, यतीमों का माल जिनके वालिदैन चले जाते, माँ बाप उनका माल रखते, फिर जरूरत के मुताबिक उन्हें देते रहते, और 5 लोग उनके मालों पे कब्जा करते थे। एक दफा अबू जहल के पास वो शख्स आया, वो बेटा आया जिसका माल अबू जहल के पास था, और आकर कहने लगा, अबू जहल मेरे पास लिबास भी नहीं है, घर में फाका है, मेरा माल में से कुछ माल तो दे दो, मेरे माल में से कुछ माल तो मुझे दे दो। अबू जहल ने धक्के देके उसे को निकाल दिया, वो रोता हुआ बाहर निकल गया। बाहर कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने देखा, उस बच्चे को बुलाया, उस लड़के को, और बुलाकर पूछा तुझे क्या हुआ, क्यों रोता है? वो लड़का कहने लगा, दरअसल मेरा बाप दुनिया में नहीं है, हमारा माल, हमारा रिस्क अबू जहल के पास है, ये मेरा कफील है, आज मेरे कपड़े फटे हुए हैं, घर में फाके किसी पोजीशन है, मैंने जाकर कहा मुझे कुछ माल दे दे, कपड़े खरीद लूंगा, खाने का एहतमाम करूंगा, लेकिन अबू जहल ने मेरा माल नहीं दिया, धक्के देकर मुझे निकाल दिया है। अच्छा, वो जो लोग थे ना, जो मिले थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो भी काफिर थे। उन्हें एक शरारत सूझी, उन लोगों को एक शरारत सूझी, वो कहने लगे यहाँ एक मुसलमानों का नबी रहता है जिसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी काबिल के बाद उसके पास जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश करे अबू जहल को, वो तेरा माल दे देगा। अच्छा, ये छोटा था, इसे क्या पता था कि मामला क्या है? वो बच्चा बड़ा खुश हुआ, वो तेरे और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलकर आया, और आकर कहता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा माल अबू जहल के पास है, वो मेरा माल देता नहीं है, शफकत करें, मेरी मदद करें, तशरीफ ला, मेरी सिफारिश तो करें, मेरी सिफारिश करें ताकि वो मेरा माल मुझे दे दे, कुर्बान जाऊं। आज जिसका कलमा पड़ा है, जिसकी बज़म सजाए बैठे हो, जिसका जिक्र तुम्हारे दिल में जुबान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, वो तो काफिरों का सरदार है, वो तो मुझे मानता नहीं है, और मैं मुसलमान, नबियों का नबी, लेकिन मेरे तो उसके साथ बनती नहीं है। फरमा सकते थे ना, तुम किसी और के पास जाओ, उसको बोलो सिफारिश करो, पर ये तो करीम थे, लाजवाब थे, कैसा सच था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखा, और आप उसके साथ चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ, उस लड़के के साथ चल पड़े। तवज्जो चाहता हूँ, चलते चलते जब अबू जहल के पास आया ना, अबू जहल खड़ा हो गया। अबू जहल ने तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल किया। अच्छा, वो लोग देख रहे थे कि होता क्या है। उनका प्रोग्राम ये था कि नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु जाएंगे, वो खड़ा नहीं होगा, वो माल नहीं देगा, हम तालीम में जाएंगे, हम मजाक उड़ाएंगे, पर जानते नहीं थे जानने वाला है, जानते नहीं थे कि जानने वाला कौन है, इसका मकाम क्या है, अपनी तरह समझते थे। लेकिन कुर्बान जाओ, हम तेरे और मेरे करीम
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर अबू जहल के पास गए, वो खड़ा हो गया, उसने इस्तकबाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमले फरमाया, ए अबू जहल, इसका माल तेरे पास है? पूछा, इसका माल तेरे पास है? उसने कहा जी है। अब फरमाया दे दो इसका माल, इसको लौटा दो। उसने कहा देता हूं। उसने उसका माल उठाया, दे दिया, बचा पोस होकर चला गया। अच्छा, वो लोग खड़े थे जिनका प्रोग्राम था मजाक उड़ाना, वो शर्मिंदा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले और चले गए तशरीफ लेकर, वो लोग इकट्ठे होकर अबू जहल के पास आए और आकर अबू जहल को कहने के तुम्हें क्या हुआ, तुमने मजहब तब्दील किया है? अबू जहल कहते हैं नहीं। वो कहने लगे फिर खड़े क्यों हुए? फिर खड़े क्यों हुए? अगर खड़े हुए तो माल क्यों दिया? फिर अबू जहल की बात सुने। अबू जहल कहने लगा, दिल तो मेरा भी यही चाहता था कि मैं खड़ा ना हूं, ये माल इसके हवाले न करूं, लेकिन पता है क्या हुआ? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर आ रहे थे, मैंने देखा कि कोई साथ है जिसके पास भाला है, कोई साथ है जिसके हाथ में भाला है लोहे का। क्या अबू जहल, अगर तू नहीं उठेगा तो हम तुम फाड़ देंगे। अबू जहल कहता मैं डरते हुए खड़ा हो गया। क्या अबू जहल, अगर आज तू नहीं उठेगा फिर तेरी खैर नहीं है, ये तुम्हें कर अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अबू जहल, अगर आज तू खड़ा नहीं होगा तेरी खैर नहीं है, ये बाला तुम्हें फाड़ के रख देगा। उसने कहा इसलिए मैंने डरते हुए मैं खड़ा भी हुआ और उसका माल भी दिया। और वापस आता है वो आउल यतामा हम वाला हूँ। एक प्यारी बात मैं अर्ज करता हूँ, शायद मैंने गुलशन हदीद में ये बात अर्ज की होगी। फैसलाबाद की सरजमीन, वहाँ एक इलाका है मक्कुआना, थके तो नहीं? मक्कुआना की सरजमीन है, वहाँ एक हमारे जानने वाले लोग थे। अब बताओ सबक की बात कर रहा हूँ, तनकीद के तौर पे नहीं, इंसान है ना भूल सकता है, कोताही हो सकती है, लेकिन जब कोई लौट कर आता है ना, रब उसमें करम करता है, रब उसे बख्श देता है। वो क्या हुआ, उसने बेटे की शादी की, उसका बेटा सरकारी नौकरी पे था। दिन गुजरते गए, अल्लाह करीम ने बेटी की निमत से नवाजा, वो हाजी साहब दादाजी बन गए। कुछ दिन गुजरे, 2 माह, 4 माह, 6 माह, उसका जो बेटा था ना, जो नौकरी करता था, उसका हादसा हुआ, उसकी डेथ हो गई। उन्होंने उस बेटी के साथ बड़ा प्यार किया, जो उनकी बहू थी, बड़ा ख्याल रखा। वालिदैन आके पूछते, वो कहते बाबा जी बड़े अच्छी हैं, ये जो मेरे ससुर हैं बड़े नेक हैं, बड़े हाजी साहब बड़ा ख्याल करते हैं। दिन गुजरते गुजरते 6 माह गुजरे, एक दिन ऐसा आया उस बाबा जी ने उस बेटी को घर से निकाल दिया। बड़ी हैरान हुई, इतना अच्छा हाजी साहब मेरे बुजुर्ग थे, मुझे क्यों निकाला? खैर घर चली गई बेटी। दिन गुजरते गए, लोग आने लगे कि तुम लोग बड़ी तारीफ करते थे कि वो बड़े अच्छे लोग हैं, ये बेटी तुम्हारे घर में बैठी हुई इतनी तुम्हें वापस क्यों जाती? उन्होंने कहा हमें पता नहीं है। कुछ जानने वाले लोग थे, उन्होंने कहा वो तो सरकारी नौकरी पे था, उसको कोई पेंशन मिली होगी, कुछ मिली। बेटी कहती मुझे कोई पता नहीं। कहा कभी कोई साइन किए हों? उन्होंने कहा कुछ दिन कई बार मुझे ऑफिस ले जाते थे, मुझे पता नहीं है। वो कहते तस्दीक करवानी है कि तुम्हारे शौहर मौत हो गए, अंगूठा करवा लेते थे, साइन करवा देते थे। अच्छा, उन्होंने जब चेकिंग शुरू की तो 18 लाख बाबा जी अपने अकाउंट में मुंतकिल कर चुके थे। कितने? 18 लाख। आज तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, 18 लाख ले चुके थे। फिर जब लोगों ने समझाया ये तरीका अपनाएं, उन्होंने वो तरीका अपनाया। तो जब वो ऐसे साहब अल्लाह से और इज्जत थे, वो उस बाबा जी को जब लाए ना, उसने पूछा, वो माँ सामने खड़ी थी, वो छोटा बेटा वो माँ की गोद में था। उसने पूछा लगते तुम हाजी साहब, ये बताओ ये जो बेटा सामने है छोटा सा, इसका तेरे साथ क्या रिश्ता है? अब जब उसने ये देखा ना सारा सिस्टम, वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कहा नहीं बताओ ना, ये छोटा कौन है, ये इनका है या तुम्हारा? बाबा जी कहते ये मेरा पोता है। कहा घर से क्यों निकाला? इस शख्स को घर से क्यों निकाला? क्या कसूर था? और तेरा पोता, तू दादा, तेरी रौनक, तेरे बेटे की निशानी, धक्के देके घर से निकाला। क्या रकम हथियाई है कि नहीं? 18 लाख ली है कि नहीं? वो खामोश करा। उसने कहा सच बता दो, पैसे लिए? उसे पता चल गया कि ये तो रिकॉर्ड है होंगे। उसने कहा मुझसे गलती हुई, खाए के पैसे लौटा दो, रात को तो बना दो। ये तो दुनिया है, आज भी तो कर जाना है, किससे नाल वफा ना की थी, इस दुनिया पे एतबारी
किससे नाल आप जितने बड़े मनसब पे फायद हो जाए, एक दिन आने वाला है, ये घर छोड़ना है, ये कोठी, ये झोपड़ी, ये कार, ये मोटरसाइकिल, सबको छोड़कर जाना है। इस हाल में जाए मालिक राजी हो। तो शहर में बड़ी प्यारी बात बताई, किससे नाल वफा ना की थी इस दुनिया पे इतबारी, ना महबूब रहा कोई इथे, ना किसे दी सिरदारी, इथे किसे दे पैर न लगे, सब टुर गए वारो वारी। आजम इथे दिल ना लामी, आजम इथे दिल ना लामी, नहीं ते रोज से जाती बारी। आजम इथे दिल ना लामी, नहीं ते रोज से जाती बारी। तो जिस गल ने सानू रब कलिया वो करना याद न रिया। पंजाबी बड़ा प्यारा पैगाम था कि जिस गल ने सानू रब कलिया वो करना याद न रिया। असी पै गए जितन दे चक्रां विच ते सान हर बार याद न रिया। ते सारी उम्र सह उधार गुजरी ते भरना याद न रिया। फानी दुनिया विच इंज दिल लाया, सानू मरना याद न रिया। असी पै गए जितन दे चक्रां विच ते सान हर बार याद न रिया। ते जिस गल ने सानू रब कलिया वो करना याद न रिया। तुम मामूली नहीं हो, तुम शान वाले हो, तुम इज्जत वाले हो, तुम शान वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। अच्छा मैं बात अर्ज करा तो बड़ी प्यारी हदीस कि जो लोग यतीमों का ख्याल रखते हैं, यतीमों को बाल देते हैं, फिर उन्हें इनाम क्या मिलता है, उन्हें अजर क्या मिलता है। नमाज पढ़ते हैं रब खुश हो, हज पे जाते हैं रब करीम खुश हो, दूषी पढ़ते हैं अल्लाह भी खुश हो, अल्लाह का महबूब भी खुश हो, और जन्नत में अल्लाह के भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो। आए हदीस पाक में गौर करें, हज़रत साल बिन साद अस-साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप क्या रहे फरमाते हैं कि फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो यतीम की कफालत करता है, जो यतीम की कफालत करता है, क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसा खड़ा होगा जैसे शहादत के साथ ये दरमियान वाली उंगली है। जो शख्स यतीम की कफालत करता है, क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसा खड़ा होगा जैसे ये शहादत की उंगली और ये दरमियान वाली उंगली। माना ये हुआ जो यतीमों का ख्याल रखते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह करीम जन्नत भी अता करेगा, नबी का कुर्ब भी अता करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जीवे 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 जीवे। अल्लाह फरमाता है यतीमों का माल उनके हवाले करें। तो फिर अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद किए, गौर करें मुहद्दिसीन कितने शानों के लायक जिन्हें अल्लाह की नेस से नवाजा और उन्होंने ये दीन समझना आसान बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली और दरमियान वाली उंगली बुलंद करके फरमाया वो मेरे साथ ऐसा खड़ा होगा। और इस अल्फाज एक आपने उंगली कुशादा रखी, क्यों रखी? दरअसल दुनिया वालों को बताया गया नबी नबी है, उम्मती उम्मती है, दर्जे में एक जैसे नहीं हो सकते, हाँ कुर्ब नसीब होगा। और दूसरी बात जो यतीमों का ख्याल रखते हैं वो अपने हो या बेगाने, बड़ी काबिल तवज्जो बात। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की सिफात के रानी है, आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी बात, एक शख्स आपकी बारगाह में आया। किसकी बारगाह में? लाजपाल आका सल्लल्लाहु की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरा दिल बड़ा सख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा दिल चाहता है कि ये नरम हो जाए, तेरा दिल चाहता है कि ये दिल नरम हो जाए और तेरी अर्जियां अल्लाह कबूल करे। तेरा दिल चाहता है कि ये दिल नरम हो जाए और तेरी अर्जियां रब्बे करीम कबूल करे। वो तो ज्यादा खुश हुआ होगा कि दिल भी नरम हो, मेरी दुआएं भी कबूल हूं, वो तो और ज्यादा खुश हुआ होगा। अजी बिल्कुल क्यों नहीं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजीफा बताया ना, वो पता क्या कलिमात थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज मरीज सिटी में आने वाले ये हरूफ अपने दिल की तस्वीर पे लिख के जाओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखना,
यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखना और यतीम को अपने खाने में से खिलाना, अपने रिस्क में से यतीम को खिलाना तो फायदे। फरमाया तेरा दिल भी नरम हो जाएगा, तेरी दुआएं भी रब कबूल करेगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरी दुआएं भी रब कबूल करेगा। और वो लोग जो भूल जाते हैं, गफलत करते हैं और यतीमों का माल खाते हैं, कुरान उठा के देखें, रब कुरान में ऐलान करता है जो यतीमों का माल खाते हैं वो यूं समझे हम अपने पेट में आग भरते हैं। इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। कैसा पैगाम था, सूरह निसा पढ़ के देखे। अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं, इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, जो जुल्मन यतीमों का माल नाहक माल खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, बेशक वो अपने पेटों में आग भरते हैं। बस यस्लौना सईरा, और अनकरीब फिर होगा क्या, वो झोंकती हुई आग में डाले जाएंगे, झोंकती हुई आग में डाले जाएंगे। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ की रात तशरीफ लेकर जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक ग्रोह को, तवज्जो, एक ग्रोह को देखा। तब मेराज की रात कि उनके ऊंट ऐसे हैं उन लोगों के जिस तरह ऊंट के ऊंट होते हैं, मोटे मोटे ऊंटों की तरह उनके ऊंट थे। और कुछ लोगों की ड्यूटी थी कि वो आग के पत्थर मुंह पकड़कर उनके मुंह में डालते और नीचे से निकल जाते, आग के पत्थर उनके मुंह में डालते और नीचे से निकल जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कौन लोग हैं? तो जो बात बताई ना, पता वो क्या थी? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्मन खाते थे। ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्मन खाते थे। एक और हदीस अर्ज़ करता हूँ और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। दोबारा सारे दासीन भी पेश करता हूँ कराची के सब संगियों को जिन्होंने कोशिश की, इतनी प्यारी नज़म सजाई, सजाते रहे। अल्लाह तुम्हारे घरों को सजा दे, अल्लाह तुम्हारे दिलों को सजा दे, अल्लाह तुम्हारी औलादों को नेक बना दे, अल्लाह इस शहर कराची को सलामत रखे, अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह अच्छे कायद नसीब फरमाए, अच्छे फैसलों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फलस्तीन पे भी रहम फरमाए, जहाँ अपने लिए दुआ करते हो फलस्तीनी मुसलमान भाइयों को ना, जहाँ जहाँ भी मुसलमान कुफार के साथ फर्ज पैकार हैं उनके लिए भी दुआ करना, अल्लाह उन्हें भी सबूल करे। आइए जो बात मैं करना चाहता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी प्यारी बात कि 4 किस्म के लोग ऐसे हैं, है रब करीम, है गफूर, बख्शने वाला, माफ करने वाला। जब भी कोई आ जाता है उसकी बारगाह में माफी का तलबगार होता है, रब करीम उसे खाली नहीं बताता। लेकिन फरमाया 4 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह करीम का ये हक है कि उसे जन्नत भी अता न करे और जन्नत की नेमतों का मजा भी न चखाए। 4 किस्म के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह करीम का ये हक है उन्हें जन्नत भी अता न करे और जन्नत की नेमतों का मजा भी न चखाए। वो कौन कौन से हैं? फरमाया पहला इंसान जो वालिदैन का नाफरमान हो, जो वालिदैन का नाफरमान हो। फिर अल्लाह की मर्जी है हक कि उस शख्स को जन्नत भी अता न करे और जन्नत की नेमतों को मजा न चखाए। दूसरा इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूद लेते हैं, जो सूदी शख्स के लिए भी अल्लाह का हक है कि उस शख्स को जन्नत अता न करे और जन्नत की नेमतों का मजा न चखाए। तीसरा इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदि शराबी हो, जो पीता छोड़ दे रब से बख्श देता है। फरमाया वो जो आदि शराबी हो और शराब न छोड़े, फिर अल्लाह करीम का यह हक है उस शख्स को जन्नत भी अता न करे, न जन्नत की नेमतों का मजा चखाए। चौथा इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतीम का माल जो खाए, अल्लाह करीम का यह हक है उस शख्स को भी जन्नत अता न करे और जन्नत की नेमतों का मजा न चखाए। हाँ, अगर तौबा कर ले, यतीमों का माल लौटा दे, माँ बाप को तंग न करे, खिदमत करे, रब की राज़ी रब का महबूब। अल्लाह करीम ये जो प्यारा दीन दिया है हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। दोबारा
जितने आप आए कोशिश करें सजदों के साथ साथ दुरूद पाक के साथ साथ हम इस्लामी तालीमात को अपनाएं। आज अक्सर वालिदैन आपको परेशान नजर आएंगे, मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, और हमने अपना हाल देखा, हम कहते हैं हम भी तो सजदे छोड़ देते हैं, हम भी तो तिलावत नहीं करते, हम तो फजूल बैठे रहते हैं, काम भी करें लेकिन अल्लाह करीम की बारगाह में सजदे रहूं ताकि आपकी औलादें आपको देखकर वो भी सजदे करें। आप भी तो उनके सामने कुरान खोलें ताकि वो भी आपको देख के कुरान पढ़े। एक बड़ी प्यारी बात मुझे जिम्मन याद आई, ताइदार अदालत सैयदुना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जमाना था। एक नौजवान, ये जो जवानी होती है ना बड़ी मस्तानी होती है, फिर बड़े लोगों की बातें बात दफा अच्छी नहीं लगती। हुआ क्या, वो बाप का नाफरमान था, बड़ा तंग करता था। एक दिन उसने अपने बेटे को पकड़ा और ताइदार अदालत सैयदुना फारूक आज़म की बारगाह में लेकर आया। तवज्जो चाहता हूँ, और पता बात क्या होगी, जब लेकर आया हाथ कहता है अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा जवान हो गया, कहना नहीं मानता, मुझे बड़ा तंग करता है, और आप जानते हैं आपका जलाल, आपका रोब, आपका दबदबा। आपने उसकी तरफ देखा और कहता क्या है, बाप मेरा बेटा है, मेरा कहना नहीं मानता, बड़ा तंग करता, ख्याल नहीं करता। जब ये बाप बात की ना सैयदना फारूक आज़म से, तो उस वक्त बेटे ने एक बात की जो आज हमें भी सोचने की जरूरत है। बेटा कहता है अमीरुल मोमिनीन, इनकी बातें बजाओ है, इनकी ये बात तो ठीक है, मैं नाफरमान हूं, मैं तंग करता हूं, लेकिन क्या सिर्फ बाप का हक है या कुछ हमारा भी हक है? सिर्फ माँ बाप का हम पे हक है या औलाद का हक भी कुछ है? अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, हाँ कुछ हकूक औलाद के भी हैं, ये भी तकाज़ा कर सकते हैं। तो बेटे ने पहली बात ये की, मेरे बाप से पूछे जिस खातून से शादी की थी वो कौन थी? जिस खातून, जिस औरत के साथ मेरे बाप ने शादी की वो अच्छी औरत नहीं, वो बाजारी खातून थी, इससे पूछो जिससे शादी की वो कौन थी? दूसरी बात, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज करता है, या हजरत इनके घर में मैं पैदा हुआ, बेटा ये खुशियां मनाए उन्होंने, इससे पूछे मेरा नाम क्या रखा? निंदा, उस कीड़े को कहते हैं जो गोबर को धकेलता है, मेरा नाम ये रखा है। तीसरी बात, इससे पूछे मेरे बाप से, कभी मुझे कहा जाके कुरान पढ़ लो, कुरान सीख लो। जब ये सारी बातें उस बेटे ने अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज की, आपका चेहरा गुस्से से सर, चेहरा सुर्ख हो गया। आपने इरशाद फरमाया, वो मेरे पास आने वाले अपने बेटे की शिकायत लेकर शादी की, फैसला अच्छा नहीं था, बेटा पैदा हुआ, नाम अच्छा नहीं रखा। फिर तीसरी बात, कुरान की तालीम नहीं दी, खुद दीनी तालीम पे अमल नहीं करता, और अब बेटे से डिमांड करता है कि मेरा बेटा नेक हो, मेरा बेटा फरमाबरदार हो। आपको फरमाया जब तुम ऐसे हो ना, फिर बेटा भी तो वैसे ही होगा। आइए आप अपने माँ बाप का ख्याल रखना। मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ, खिदमत माँ बाप भी करते हो, खिदमत अपने बूढ़े माँ बाप भी करते हो, ये जवान है खिदमत करते हो, मामूली नहीं हो, मुकद्दर के धनी हो। तो फरमाया चार किस्म के लोग हैं, अल्लाह करीम का हक है करीम, जो शराब पीता हो माफी मांग ले, रब से बच देता है। सूद लेता था छोड़ दे, अगर वो काम न करे रब से बच देता है। यतीम और माल खाता है वापस दे दे, रब उसे बच देता है। वालिदैन का नाफरमान तंग करता है, सांसों का भरोसा नहीं है। हम जब मेरी लाहौर से जब फ्लाइट थी कराची के लिए, सुबह आपको बताया नौजवान लड़का थोड़े दिनों में परवान चढ़ा, जान में कोठी खरीदी, फिर एक गाड़ी खरीदी, फिर दूसरी गाड़ी खरीदी, हाई वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आया। दूसरे दिन थे जब शाह लतीफ टाउन में हम, मुझे रात को मैसेज आया, वो नौजवान जो परवान चढ़ते चढ़ते ना लोगों के दिलों में मकबूल हो रहा था, आज दुनिया में नहीं है। परेशान हुआ क्योंकि हमारे साथ दो गाड़ियां थी कि वो कौन सा ड्राइवर है, मुझे नाम बताया शेर मोहम्मद, मैं फैमिली का खूबसूरत नौजवान, बड़ा अच्छा इंसान था, दर्द भी रखता था, और वो अपने उस दोस्त को छोड़ने आया जिसका नाम एजाज था, वो भी बड़ा प्यार वाला इंसान है, उनको उम्र पे भेज दिया, ये घर चला गया। बस 2 दिन घर में रहना नसीब हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। कितने खुश थे कि हमने कोठी खरीद ली, कितने खुश थे एक गाड़ी खरीद ली, फिर दूसरी अल्लाह ने दी,
कोठी बनाना कोई जुर्म नहीं है, मकान बनाए, कोठियां बनाए, गाड़ियां खरीदे, हाँ रिस्क हलाल, कोई बना नहीं, इस्लाम नहीं होता। शाहाना जिंदगी गुजारे, शान के साथ पता चले नबी का गुलाम है, लेकिन जो रिस्क हो गरीबों का नहीं, यतीमों का माल ना हो, रिस्क हलाल हो, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का महबूब भी राजी होगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश करेंगे आप कि ये जमीने भी झुके, अगर कोई गाफिल है अपनी गफलत की चादर उतारे और अपने रब करीम को राजी करें। जब सांसों का भरोसा ही नहीं तो फिर नाज किसका, फख्र किस चीज का कि आज ये है कल ऐलान होगा, फलां चौधरी साहब नहीं, फलां खान साहब नहीं, फलां सूफी साहब नहीं, फलां कारी साहब नहीं, फलां नवाब साहब नहीं। तो आए आज अपने मालिक को राजी करें, अपनी जमीनी उसकी बारगाह पे झुकाएं और रात को थोड़ी देर आप बड़े मसरूफ तरीन शहर में रहते हैं, 5 मिनट बैठ कर सोचता लिया करो ना कि किसने आंखों का नूर बख्शा, बोलने वाली जुबान दी, प्यारे प्यारे हाथ दिए, टांगे दी, ये जमीन का फर्श मेरे लिए बिछाया, अगर वो चाहे आंखों का नूर ले ले तो क्या करूंगा, हाथ फाले जो ना रहे तो क्या करूंगा, टांग जब एम दे जाए तो क्या करूंगा। उस घड़ी से पहले किसी आजमाइश में आ जाए, हम अपने रब को मना लें और हो सकता है ये सांसें खत्म हो जाए तो फिर इस तरीके पे खत्म करें। मजा तब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, फिर मजा है, फिर ये जिंदगी है। कभी कभी यूं मिसाल करता हूँ, जहाँ आपके कदम लगे, इस कराची के रहने वाले हम आप बुजुर्ग नौजवान, जब आप कदम रखे ना ये मट्टी भी चूमी आपके कदमों को मट्टी बोझ से ले खराज तासीर पेश करे और वो कहे कि जाना वाला आम नहीं नबी का गुलाम जा। अल्लाह अल्लाह करीम जो टूटे फूटे जुमले अर्ज किए सोच समझ कर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई लग़्ज़िश हुई हो तो मेरा मालिक माफ फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। मुस्तफा जाने रहमत मिला हो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत मिला हो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत मिला हो सलाम, बख्शिश हम गुनाहगारों को बख्शवाएंगे वो, हम गुनाहगारों को बख्शवाएंगे वो, हम गुनाहगारों को उनकी शान-ए शफाअत फैला हो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत मेरा हो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत मेरा हो सलाम।
سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جانے امر کی راحت پہ ہو سلام مصطفیٰ جانے احمد پہ ہو سلام آل رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول